Bihar Chief Minister Nitish Kumar landed himself in a controversy with the widespread condemnation now in one of his remarks that he made while on population control and empowerment of women. But he had to literally apologize for the comment because of the choice of words and the explicit description that he made. He has said if he's hurt sentiments, he takes back his words. His apology also has come after literally political parties in opposition came down on the streets at the Secretariat and at the Assembly in state to protest against him. While addressing the legislators that included some women leaders too, Kumar went on to explain how women's education contributes to population control. Now the issue sounds fine, but he said when the women are better educated, they would know how to protect themselves from getting pregnant. But he explained this in elaborate technical details. And this is what led to a lot of shock and outrage too over the choice of words. Opposition staged a protest in Bihar Assembly over the derogatory remarks, inappropriate mentions that should not have come from a top elected leader. अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी उन सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है। So here's what Bihar Chief Minister Nitish Kumar had said in the Bihar Assembly, not once but twice at different occasions. And that has led to a huge political showdown. पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ तो रतवा में सुतता है और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम अरे सुनिए तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। So like you must have heard in the background, someone literally told him that he's the chief minister. He shouldn't be using the kind of words he's choosing. But he went on to say that the population has been in control because of empowered women. And these are the mentions that he chose to take it. But because of those choice of words, he's drawn flack from the women legislators specifically. The moment he reached at the State Assembly on the third day of the winter session of the Bihar Assembly, MLAs, MLCs of the Bharatiya Janata Party immediately surrounded him. Opposition members stopped him from entering into the house, sought clarification on the statement. एक मुख्यमंत्री के पद पर हैं, सब ये बात बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सठिया गया ना उनका दिमाग, मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया पूरा हाउस हतप्रभ हो गया और अध्यक्ष जी ने मेरे ऑब्जेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल और शब्दों का इस्तेमाल आप न करें इस सदन में, चूंकि आप हमारे अभिभावक हैं। बोले बैठो बैठो बता रहे हैं, बैठिए बता रहे हैं हम। किसको बोल रहे थे? सम्राट जी को। और बोलते हुए उसके बाद मैं
उनके शुरुआती शब्द को सुनी, उसके बाद मैं बाहर आ गई। उम्र का ख्याल है, उम्र जब बढ़ता है तो कुछ कुछ होते रहता है। ये तो उम्र का ख्याल है, उम्र सलट गया है, उम्र नहीं है, अब इनका इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी बातों को वो और अच्छे तरीके से, मर्यादित तरीके से वो रख सकते थे, लेकिन लगता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भाषा और सभ्यता का ज्ञान नहीं है। उन्हें लगता है महिलाओं के प्रति वो संवेदनहीन है। और कल का जो वाकया हुआ वो तो खैर उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह के व्यक्ति को अपने आचरण, अपने शब्दों और अपने व्यवहार में थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है। माफी मांगने से क्या हो सकता है? जो एक बात कहते हैं ना, तीर कमान से छूट जाने के बाद और बोली जुबान से निकल जाने के बाद आज तो शर्मसार वाली वो बात कर ही दी है, तो पूरे बिहार को और पूरे बिहार के पूरे देश को शर्मसार किए हैं। माफी काफी तो किसी कीमत पे नहीं है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो कदापि माफी के लायक नहीं है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ही करते हैं कि निंदा क्या, अभी तो पूरे देश में उनका निंदा हो रहा है। आप बराबरी की बात करती हैं तो हर तरह के माहौल को, हर तरह की बातों को फेस करना पड़ता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप किसी राज्य या देश के मुखिया हैं, तो बहुत सी बातों को सब लोग जानता है, उसके बावजूद भी उसको बोलना समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ बातों से परहेज करना जरूरी है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को मान सम्मान देते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, वैसी परिस्थिति में सदन में खड़ा होकर के इस तरह का बात बोलना कहीं से उचित नहीं है। हर नेता को महिलाओं के लिए सम्मान से बोलना चाहिए, सम्मानित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही गंभीर नेता हैं और मुझे लगता है वो खुद भी समझ रहे होंगे कि इस तरह की भाषा महिलाओं को दुखी करती है, हमारा मनोबल तोड़ती है। तो मुझे आशा है कि आगे से ऐसी भाषा का प्रयोग वो न करेंगे। महिलाएं समझती हैं, उनको अच्छी भाषा में भी और अपनी बात को एक सुसंस्कृत भाषा में भी किया जा सकता है। So National Commission for Women has also spoken up, asking one, that there be an apology which has slightly come from Nitish Kumar, but also that the speaker must expunge the remarks at the earliest. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone, and the worst was men sitting behind, they were also laughing. Speaker ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था? वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। बहुत ही घटिया सोच है ये बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से बात की, वो भी असेंबली में बेहुदा घटिया ढंग से जिस तरह से उन्होंने उसके बारे में बात की है असेंबली में। और उनका बेटा कहता है कि ये सेक्स एजुकेशन के बारे में था। तो मैं पूछना चाहूंगी कि असेंबली में कौन से सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम? वहाँ पे किसको सेक्स एजुकेशन की जरूरत है? जो सीनियर सिटीजन बैठे हैं, नीतीश कुमार जी की उम्र के लोग बैठे हैं, उनको जरूरत है? या जो लॉ मेकर्स जो चूज करके वहाँ पर एमएलए बैठे हैं, उनको सेक्स एजुकेशन की जरूरत है? और मेरा सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हम जो एक गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ की प्रियंका गांधी जी या सोनिया जी या ममता बनर्जी इसके बारे में क्यों नहीं बोल रही हैं?